Hello everybody, this is Hexy Dexy Box and today we are here for a meeting and talk on a performance art and it is organized by Sufi and now I'm going to tell something about our Hexy Dexy Box. Hexy Dexy Box is a collective, a catalyst assembly for head-to-head interactions, collaboration and creative gossip with the spirit of gathering community in a metro city. We like to play with a nonsensical form of verbal expression of art work as a performance against a social justice. It made an approach of a sensible gamble of behavioral performance art as well as aesthetic diaspora. Diaspora to fraternity is a long distance made a breed between the behavioral approach as a social practice. Embedding is an energy, might, potency, vigor, muscle that act as an opposite direction of a social discourse in a globe. Different forms emerge through scrapping, excoriation between the complex reality of gender and sexuality in modern South Asia, especially at the intersection of cultural and division. So Tadu sir will say about performance art. Welcome everyone. I'm the director and creator of GXC Box. Thank you to Sufi to get this event, body, choice and space. And the all participants, although without the participants we cannot do the success. So I cannot say much. I cannot say much about ourselves, but I love to say performance art, the form is very much abstract. Because all the time people are confused about performance art and performing art. If you say that I'm performance artist, who are dancers, they also say I'm performance artist. They perform art, but they say that I'm performance artist. So all the time there is too much confusion, conflict. So we thought that we do not choose these both forms. We just say that behavior art. And why we say behavior art? Because I feel performance art is vernacular narrative. Like whatever you perform through your brain, through your mind, there is no script, no as such preparation, but there is an aesthetic value, very important role. There is a lot of research before your work. You can go to the main topics and you can do library work, you can do the internet work, whatever you can find out the data of all the data in your mind. And when you perform, your body instructs you. Okay, you are visual artist, you have a certain degree, so you can understand that what is the topics and how and why you perform and what places perform. So that's the basic things. So there is a thin line between performer and performance artist. Always, whenever people going to attain the performance art, natural time it will be the theater, choreography, the whole thing. So this is very confusing. So all the time my advice just think the very easy topics, mundane life, and you can do all the things physically opposite. Like you brush the teeth, but sometimes just in the performance art, you just brush the nail. Okay. So then the curiosity is going to come up. What's going on? And why we do it. So this kind of ticks there, and you can always choose the unusual object. The object also make a curiosity. And there is no dress, but you can create your own dress. You can make your own vocabulary. And there is a many sections. You can talk about that later. So, any questions we are talk to us. I think performance art in India, performance artists in India is very strong. And you can shout everybody is dancer, singer, cinematographer, photographer, choreographer, but very few performance artists. So this is very strong point for us. And you can make a very strong platform. So that's why we are making a performance marathon. We are planning to do in each one you can sit and you can talk and you perform. Each unknown place explores the possibility and vocabulary you can learn. So that is our motto and that is our plan. I just am passing the mic to
Shruti was given a very nice project. Shruti is handling 2 projects, by the way. One is international project and he did a call out because long term we are not doing much, so he thought that he have to do the call out. The same topic, body choice space. Anybody can send the video and we have a list of videos. So if you send the videos, all videos to them, and whatever the video is selected, you can 20 or 30 videos with their names, with their bio, with their social media. So people can try for that, people can try to do like what? One, people can active. So there will be two sections. One is mentor section. Mentor section, all mentors want to make a video on the topic. So that is our learning. The same topic, how they attend, how they do the video. One section is younger and one is senior. Three sections in the whole thing. So this is now should be. Thank you. As you guys already have introduced, कट तो हो जाएगा यहाँ पे बैठ यही रख all of you for joining us today's evening. We are gathered here to talk and discuss performance art as our group is dedicated to promote the practice of this new media in India, and we are currently working on promoting this genre of art among students, artists, and public. I would like to speak and I think first let the artist speak about their topics. Okay, so our subject was space, body and choice. For body, it is not just your physical human being's body. It could be anything like your society, your workplace, your educational institutions, anything. It could be anything. And for choices, it could be your fashion, your language, your food, what you eat, how you dress, like, and where are the places you go, anything. Yeah, I think that will speak about their own works. I would like to request Salman. अभी speak about थैंक यू अभी मतलब कुछ पिछले दिनों की बात है 13 तारीख की 13 तारीख में जो परफॉर्मेंस हुआ और इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं और सबका अलग अलग मौजू अलग अलग टॉपिक था। बड़ा ही अच्छा अनुभव रहा। और दिल्ली के अंदर शायद हमारा एक्सपीरियंस में इतना बता रहा है, दिल्ली के अंदर बहुत दिनों बाद ऐसा मतलब इवेंट भी देखने को मिला और किया, इन्जॉय किया, बहुत अच्छा रहा। पहला परफॉर्मेंस हमारा मुंबई में 2012 में किया था। बात आई कि मतलब टाइटल क्या परफॉर्मेंस हुआ मंडी हाउस में 13 तारीख को। सोच रहे थे, कई बार सोचा कि टाइटल क्या होना चाहिए, क्या रखें। जैसे दरअसल क्या कि जो हम
8-10 साल से परफॉर्मेंस के ऊपर जो काम कर रहे हैं, तो सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, इन सारी चीज़ों को लेकर हम परफॉर्मेंस में कर रहे हैं। पिछले गुज़िश्ता दिनों में जो परफॉर्मेंस किया थे 13 तारीख को, उसमें हमने शिक्षा को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर और धार्मिक चीज़ों को भी लेकर, जो धार्मिक मतलब किस तरीके से लोग आपस में लड़ रहे हैं, शिक्षा की ओर ध्यान ना करके उसे मतलब ठग रहे हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर परफॉर्मेंस किया, लोग जुड़े और एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। और हम धन्यवाद शुक्रिया बोलना चाहते हैं एमसी बॉक्स और सूफी भाई को, जिन्होंने इतना बढ़िया से जो है शो को क्यूरेट किया, और हम अपने तमाम सम्मानित साथियों को तो पहले मैं शुरू करना चाहूँगी जो शताद्रु जैसे बोल रहे थे कि परफॉर्मिंग आर्ट और परफॉर्मेंस आर्ट परफॉर्मेंस, लाइव आर्ट में बहुत अंतर है। नृत्य, नाटक, संगीत, इवन चित्रकला भी एक वे में परफॉर्मेटिव हो सकता है। तो आर्ट परफॉर्मेंस जो है वो ऑलरेडी वो बता चुके हैं, उसमें एक्शन पेंटिंग भी आता है, उसमें एटीट्यूड भी आता है, उसमें टेक्स्ट भी आता है, उसमें लाइव आर्ट भी आता है और बहुत कुछ नहीं भी आता है। अगर कुछ ना समझ आए वो भी एक तरह का वो ही परफॉर्मेंस आर्ट है और नहीं भी। जो आर्ट परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मिंग आर्ट्स की जो मेथडोलॉजीज हैं और जो प्रोसेसेस हैं उससे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट भी होता है, उससे कहीं ना कहीं सिमिलर भी होता है। और आर्ट परफॉर्मेंस की जो प्रोसेसेस हैं वो परफॉर्मिंग आर्ट्स में बहुत ज़रूरी मानी जाती है। जैसे संगीत में बोला जाता है, अगर आप पूरी तरह बहुत आम भाषा में अपने आप को फ्री नहीं करेंगे तो आप रागों में को कैसे गा पाएंगे। तो वो जो प्रोसेस है फ्री करने का, ऑथेंटिक सेल्फ एज इट इज़, वो एक प्रोसेस है जो एक जॉनर बन के आ गया है परफॉर्मेंस आर्ट का। और जो लास्ट टाइम मेरी परफॉर्मेंस नहीं बोलना चाहूँगी, नहीं तो अगर उसको परफॉर्मेंस बोलूँगी तो फिर वो परफॉर्मेंस आर्ट हो जाएगा, तो उसको मैं क्या बोलूँगी। जो मेरा एक्सप्रेशन था इन द मीडियम ऑफ परफॉर्मेंस, वो उसमें जो टेक्निक्स थी वो पेंटिंग भी थी, उसमें कुछ मूवमेंट्स थी वो शायद ट्रेडिशनल डांस से मैंने भी ली थी। अब जो है वो मेरी ग्रामर बन चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि जैसे ट्रेडिशनल कथक में बोला जाता है एक चीज़ होती है उपज, इट इज़ द ओनली इंडियन क्लासिकल डांस जहाँ पर आप अपने स्टेप्स बना सकते हैं एक बार आपके पास ग्रामर हो। बाकी क्लासिकल डांस में एक स्ट्रिक्ट फॉर्मेट और स्ट्रिक्ट स्कूल्स हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो उपज है वो इन इट सेल्फ, जब मैं छोटी थी मुझे कथक इसलिए पसंद था क्योंकि उसमें एक फ्रीडम सी लगती थी मुझे। एंड मुझे लगता है कि वो जो उपज का स्पेस है उससे कहीं ना कहीं मैं एक तरीके से आर्ट परफॉर्मेंस को से रिलेट कर पाई थी, चाहे मुझे उसकी टर्मिनोलॉजी ना पता थी पहले। और कहीं ना कहीं ये जो आइडेंटिटी है कि अगर आप एक आर्ट मीडियम को यूज़ करते हैं तो आप एक मिनिएचर आर्टिस्ट बन जाते हैं या पेंटर बन जाते हैं, कथक डांसर बन जाते हैं या डांसर बन जाते हैं, तो मीडियम की जो आइडेंटिटी है वो जुड़ जाती है। उसको एक्सेप्ट ना करना पर उसकी ग्रामर को अब्जॉर्ब करना और एज इट इज एक्सप्रेस करना एक फाइन आर्ट के कॉन्टेक्स्ट में, आई थिंक मैं अभी उस चीज़ को भी एक्सप्लोर करती हूँ। और
आइडेंटिटी है एक आर्टिस्ट की, उसको भी छोड़ने का, और मे बी कोई मीडियम से आर्ट परफॉर्मेंस ना करने का, क्या ये संभव है? तो ये जो ये मेरे माइंड में बहुत बातें चल रही हैं। और जो अभी रीसेंट परफॉर्मेंस था वो था अर्धनारीश्वर पर, जो इंटरनल डायलॉग्स हैं, फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी जो मैं रिकग्नाइज करती हूँ जिससे, और जो आज के दौर पे जैसे मैं अर्धनारीश्वर को शायद देखना चाहूँगी अपने अंदर और उस आइडेंटिटी को भी यूज़ करना चाहूँगी, तो उसको भी मैं एक्सप्लोर कर रही थी। तो एक पब्लिक स्पेस में जब मैं वो कर रही थी तो लोगों के बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शंस थे जो थिएट्रिकल सेटिंग में नहीं मिलते, क्योंकि वो एक आप कैरेक्टर के अंदर होते हैं एंड हैव टू एब्सोल्युटली हेट थिएटर टू, और नॉट हेट थिएटर बट नॉट बी एक्टिंग टू बी डूइंग आर्ट परफॉर्मेंस और नॉट बी डांसिंग टू डूइंग आर्ट परफॉर्मेंस इवन इफ द ग्रामर इज एंड तो लोगों के बहुत अलग अलग ये जो रिएक्शंस थे कि ये तो कपड़े गंदे हो गए, ये इतने महंगे कैनवस को क्यों फाड़ा। तो ये जो एक इंटरेक्शन थी बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। एंड इस चीज़ को कि आर्ट जब सड़क पे आता है, जो सबके सामने आता है, तो उसका अनुभव एक जो उधर दर्शक हैं और जो उधर एक पर्सन है जो आर्ट परफॉर्मेंस में इंगेज कर रहा है, उसका भी दायरा परफॉर्म करने का थोड़ा चेंज होता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड आई थिंक ये और स्पेसेस में होएगा तो और मज़ा आएगा, क्योंकि ये जो स्पेस थी इसमें बहुत सारे थिएटर के लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर थिएटर, डांस, म्यूज़िक, हाँ, उनके दिमाग में वो फ्री लैंग्वेज जो है वो थिएटर, म्यूज़िक और डांस की है एंड वो आर्ट परफॉर्मेंस के साथ एंगेज करते हैं। और ट्रैवलर्स हैं क्योंकि इधर एक बस स्टैंड है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी ऑडियंस थी। तो वो कैसे आर्ट परफॉर्मेंस को देखते हैं, उनका भी एक अलग तरीका था। तो आई थिंक और एक्सप्लोर करने में मज़ा आएगा। evening to all of you, and thank you to all of you to bring here my recent performance on loneliness। सबका एक पार्ट होता है लाइफ का। हम हज़ारों लोगों के बीच में चलते हैं और हज़ारों लोगों के बीच में चलते हैं, लेकिन हम फील करते हैं अकेले में, और हमें बहुत उससे पैरेलल है एंग्जाइटी भी और फ्रस्ट्रेशन भी। हम प्यार चाहते हैं, हम ढूंढते हैं कि एक दूसरे से प्यार से हम एक दूसरे में प्यार ढूंढते हैं, पर वो हमें कई बार मिलता नहीं, हम बहुत ज़्यादा अकेले फील करते हैं, राइट। और ये इस टॉपिक के ऊपर मैंने परफॉर्मेंस आज की। मुझे ऐसा फील हुआ कि हम इतना ढूंढते हैं लोगों से बात करने में, इतना घबराते हैं बात करने में, कई बार हम उस चीज़ को ख़त्म ही कर देते हैं, हम अकेले ही रह जाते हैं। और ये फैक्ट है, दिस इज़ द फैक्ट कि हमें जो कुछ करना है, हमें कोई हेल्प करनी है तो वो खुद से ही करनी है। तो दिस इज़ माई टॉपिक। और परफॉर्मेंस आर्ट मेरे लिए नवा है अभी, और मुझे अब तक यही जानने को मिला या फिर यही सीखने को मिला कि परफॉर्मेंस आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट इज़ नॉट इक्वल, वो सेम नहीं है, वो अलग अलग है जॉनर्स। और लाइक डांस, थिएटर, सिंगिंग, लिटरेचर आर्ट वो अलग है, परफॉर्मेंस आर्ट इंडिया में नवा है। इसमें इसको सीख के अपनी गाइडेंस से, किताबी सर की हेल्प से और सूफी की हेल्प से जो इन्होंने क्रिएट किया मंडी हाउस में, तो इससे रिलेटेड और जानने को मिलेगा आगे, और परफॉर्मेंस करूँगा, वर्कशॉप्स कंडक्ट होंगी आगे। तो दिस इज़ माई टेक ऑन दिस। Good evening, everybody. Yes, I can say performance art is a newborn baby in India.
because it has literally a less understanding, and people are really confused about performing art and performance art. So I want to tell something like recently I did my dissertation on performance art. The reason behind to write dissertation is that I found very less content about Indian performance artists, like when it started and who are the artists and why they do and what are the understandings. So I almost took interviews from 10 to 12 artists among India, and each and every artist has a different understanding about that. So slowly, with the help of Satavi sir, I got to know, and I thought to compile a book related with that. That upcoming generation will get to know about that, and they can work for that. So I written, and then after the main sad part is that in the colleges, in the fine art colleges especially, people don't know about performance art. They believe that performance art means performing art, like dance, theatre, drama. They don't know. They study in the books, they teach to their students, but still there are lacks. So this was a reason, and I believe that this is a way in which we can express our thoughts in a few minutes, few seconds, without using a canvas, without carving a stone. So it is an easy way to express and spread knowledge among the people. And my recent performance was about identity. In that performance, I applied two colors on my body, and how different colors can give a different impact on the people. So that was my understanding about performance art, and I believe that performance art is a live art, because when a video stopped, it become a video art. When photo click, after that it become a performative picture. But the time in which performance is going on, that is a real performance art. So I can say it is a live art. So I will request sir, a organization called Before that, I loudly. I'm sorry. I qualified finance in research on art and performance art. For the last 10 to 15 years, I'm working on performance art, documentation work, working with videos, collecting some information in Indian performance artists. My practice. Before that, when I was doing PhD, I'm doing my thesis was primitive art practitioners, primitive art, folk art, both live learning and but when I moved to Delhi, I said many different types of work. It's called contemporary art, modern art. But it's different. After that, I think in 1999, there was a seminar, this seminar organized my guru. I saw the first time the performance art.
5 to 6 artists are performing there from Goa, Hyderabad, and one is from Royal Kolkata. First time I saw the performance, but I can still hear it. And 2010, when I saw all the Jerusalem, Psychia, yes. Some more artists are behind. Then I decided to document all that. उससे पहले मैं क्वार्टरली एनालिसिस किया, बेसिकली मैं उस टाइम परफॉर्मेंस कभी करता नहीं था, लेकिन बहुत इंटरेस्ट था और मैं करता रहता था, लेकिन उसको एक प्रैक्टिस में नहीं लाता। तो एक मैं स्टडी करने की कोशिश किया स्टोरी कॉलेज एंड बिहेवियर समटाइम्स आई हिस्टोरिकली है ये बेसिकली पॉलिटिकल परफॉर्मेंस, पॉलिटिकल प्रैक्टिस के ऊपर कोई बात आपको रखनी होती है तो परफॉर्मेंस थ्रू द बॉडी यू कैन एक्सप्रेस इजीली। ये बहुत पहले से ही पॉप आर्ट या दादाजी से टाइप वेस्टर्न इंडिया में उस तरह से कोई कंटेंट को नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे आप मंत्र में देखेंगे, फार्मर प्रोटेक्शन में देखेंगे, बहुत सारे खुद ही परफॉर्मेंस किया, उनको आप कैटेगरी में ला सकते हैं। इससे कॉल्ड पॉलिटिकल परफॉर्मेंस। तो हिस्टोरिकली बहुत सारे एरिया पे और बहुत टाइम फ्रेम में देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ परफॉर्मेंस था, और कभी ग्रुप में वर्क किया, कभी इंडिविजुअल में भी वर्क किया। तो परफॉर्मेंस आर्ट वो एक टाइम है, एक स्पेस है जो आपको टाइटल दिया हुआ है, उससे इसे अप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस है। बेसिकली टाइम इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है, आप कौन से टाइम क्या ज़रूरत है और उस टाइम पे आपको क्या महसूस हो रहा है या आपका विजुअल क्या है, उसको जस्ट एक्सप्रेस करना है। और स्पेस कुछ भी हो सकता है, आपका चॉइस कुछ भी हो सकता है, मीडियम कुछ भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि लोग हो तभी आप परफॉर्मेंस करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई स्पेस चाहिए तो इसलिए इनर पाइप एक इनर वे से जो आपको आता है। लेकिन कभी कभी हम ये होता है कि हम प्रैक्टिस में जब लाते हैं तब हमारे पास ग्रामर आ जाता है, तब हम परफॉर्मिंग आर्ट के साथ कनेक्टिविटी फील होता है कि हमें इसके अंदर कोई ग्रामर नहीं बनाएगा। जो मान लो प्रोडक्शन कर रहे हो या डायरेक्टर में जो लोन परफॉर्मेंस किया, उन्होंने कोई ग्रामर बना के नहीं किया, और अभी तक उसके ऊपर कई ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रामर नहीं डेवलप हुई है। जिन लोगों ने, चाहे आप रीना वाल्जी जी को भी देखिए और भी जितने भी बड़े बड़े परफॉर्मेंस आर्टिस्ट, उनके भी आप इंटरव्यू टॉक्स आप सुनेंगे, उसमें ऐसा कोई कॉमन बातें नहीं मिलेगी। इसलिए कोई ग्रामर फिक्स नहीं हो। जैसे ऑयल पेंटिंग करते हैं या एक्रेलिक वर्क करते हैं, ब्रश तक कंपलसरी होता है, कुछ लोग हाथ यूज़ कर लेते हैं या लेकिन कैनवास मेन है। जैसे परफॉर्मेंस आर्ट में कोई चीज़ फिक्स नहीं है, इसके अंदर आप कोई भी मीडियम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी बॉडी पार्ट्स ले सकते हैं, कोई स्पेस ले सकते हैं, कुछ भी ले आप उसके ऊपर है, बस आपका चॉइस उस तरह से होना चाहिए। और उसके कभी कभी ऐसा भी बहुत सारे परफॉर्मेंस आर्टिस्ट को मतलब किया, लास्ट 15 ईयर्स में मैंने क्योंकि उनसे पहले परफॉर्मेंस दिया था, उसके बाद परफॉर्मेंस करा ही नहीं, क्योंकि उनका मूड ही नहीं हुआ, मतलब उनके प्रैक्टिस में नहीं आए। फिर बाद में एक बार मैंने जब डॉक्यूमेंटेशन करने लगा, बाद में एक बार रात को 12 बजे मुझे फ़ोन करता है, तुम नेक्स्ट कैमरा लेके आ जाओगे मेरे पास? क्यों, क्या हुआ? तुम आ जाओ बस। 12-1 बजे मैं कहा मैं नहीं आया ही नहीं। पता चला उन्होंने खुद ही मोबाइल पे शूट किया था लॉकडाउन के टाइम पे, तो फिर उन्होंने मुझे वीडियो शेयर किया तो मैंने सॉरी आई मीन। और एक्चुअली क्या है, परफॉर्मेंस आर्ट कभी किसी टाइम से कोई टाइम पास आपका एक, जैसे मैं समझता हूँ जैसे आपको प्यास लग रहा है ना, तो बुझाना है। मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस आर्ट इस टाइप है, और आप जहाँ पर कहीं पर आपको कंप्रोमाइज़ होता है या कहीं पर आप चूज़ करते हैं, चूज़ के पूछे आपको प्यास लग रहा है, प्यास बुझाना है, उसके लिए सोचना ज़रूरी नहीं कि कौन सा कंपनी के मुझे कौन से बटन पे लेना है, बस प्यास आप माइनर जो मेन पॉइंट है। उसके बाद आप ऐड कर रहे हैं
कि कौन से बॉटल है, कौन से ग्लास से या कहाँ से मैं पानी लूँगा, तो इसका मतलब वो परफॉर्मिंग आर्ट होगा। क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड पे परफॉर्मिंग आर्ट का ऑलरेडी ग्रामर बना हुआ है, क्योंकि दर प्रैक्टिसिंग, परफॉर्मेंस आर्ट प्रैक्टिस नहीं करता। इसका डिफरेंस आई थिंक प्रैक्टिस नहीं करता, वो होता है, इसका कोई ऐसा नहीं है। वो बात ठीक है कि हम जब शूट करते हैं या वीडियो फोटोग्राफी में वो अलग एक सेंस में पहुँच जाता है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन का कोई जरिया है ही नहीं परफॉर्मेंस आर्ट। जैसे रात में वो कुछ मन हुआ करने के लिए मैं जाकर शूट कर दूँ, वो तो उसी टाइम इसका हो गया, उसी और कोई है ही नहीं। वो दीवारें उसके एविडेंस हैं जो उसने किया, या जो उसका ऑब्जेक्ट होगा वो परफॉर्मेंस। मुझे लगता है कि बेस्ट वही है, लेकिन उसके बाद हम प्रैक्टिस में आते हैं। प्रैक्टिस में बहुत सारे एरिया आ जाता है, पॉलिटिकल, इमोशनल कह सकते हो या साइकोलॉजिकल कह सकते हो, मीडियम वाइज कह सकते हो। बहुत सारे मीडियम मैंने इनको हर वक्त देखता आ रहा हूँ कि वो एक स्पेसिफिक मीडियम से वर्क करते हैं, जैसे लाइट और कुछ लोग हैं कि और जैसे कन्फर्म साइड किया वो सिर्फ पॉलिटिक्स को लेके, मतलब आजकल टाइम पे जो उसको डाउट लग रहा है उसको एक्सप्रेस करना है, पॉलिटिकल परफॉर्मेंस। सेम थिंग इधर सनी पॉलिटिकल सेम, वो एक एरिया से उसका बिलोंग करता है, उस एरिया का लैंग्वेज शेयर। और भी लोग हैं जो साइकोलॉजिकली जो भी उनके प्रॉब्लम्स होता है उसके अंदर भी आता है, जनरेशन भी आता है, कम्युनिज्म भी आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे ये बोल देते हैं कि फार्मर या इंडायरेक्टली पॉलिटिकल सिस्टम। ये हम ग्रामर बना रहे हैं, ऑलरेडी ग्रामर बता रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस करने वाले लोग कम हैं इंडिया के अंदर और बहुत कम समय है इसका, लेकिन ये अभी नया भी नहीं है। प्रैक्टिस करने वाले कम इसलिए हैं, इसके पीछे मेन कारण ये है कि इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी या इकोनॉमिकल सपोर्ट मिला नहीं होता, तो इंडिया में कोई परफॉर्मेंस आर्ट को एक इकोनॉमिकली जनरेट करने के लिए कोई जल्दी जरूरत नहीं। बात ये क्या होता है कि जैसे मैंने बहुत बार परफॉर्मेंस आर्ट को एक वीडियो में कन्वर्ट करता हूँ, तो वीडियो आर्ट की तरह से आता है। मेरे दूसरा जॉब सिलेक्ट हुआ है, एक बार हमने जो वीडियो बदलाव में करते हुए मेरा सिलेक्ट हुआ है, तो उसमें ही इन लोगों का ही वर्क है, इन लोगों ने परफॉर्म किया। लेकिन मैं कभी, उन्होंने कभी जो मांगा कि मुझे कि आप इसका क्या है आपका कॉपीराइट इसके ऊपर होगा, तो उन्होंने ये भी मांगा कि परफॉर्मेंस करने वाले लोगों का भी बताओ। मैंने कहा इसी तरह से तो नहीं है, वीडियो आर्ट की तरह से जा सकता हम लोग दो तरीके को बताया, या तो परफॉर्मेंस आर्ट की तरफ से ले रहे हो या वीडियो आर्ट की तरफ से ले रहे हो। कॉपीराइट परफॉर्मेंस आर्ट मांगोगे तो मैं उससे कॉपीराइट लूँगा, या वीडियो आर्ट कहोगे वीडियो आर्ट उससे लो, तो वो भी डाउट में रह गए। ये अभी तक क्या होता है कि जस्टिफाई नहीं हो पाता है कि परफॉर्मेंस आर्ट की प्रैक्टिस करते तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिस फैक्टर की वजह से प्रैक्टिस नहीं, और उसके पीछे ग्रामर और उसके अंदर जो डेप्थनेस है वो ठीक से बैलेंस नहीं होता। मुझे लगता है कि शायद ऐसा है, लेकिन एक अच्छा प्रैक्टिस है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं कि आपको किसी तरह से ना कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप जहाँ कुछ भी आप मन में आए आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन जिस टाइम आप ग्रामर सोचोगे, पहला तो आप अपना मतलब आपका जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाएगा, फिर तो आप वही आगे कैनवस पेंटिंग के ऊपर आ गए या जिस दिन आप स्पेस को डिसाइड करते हो या मीडियम्स के ऊपर डिसाइड कर लेते हो, इंडायरेक्टली परफॉर्मेंस आर्ट मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत लिमिट हो जाता है। या आप जो कर रहे हो कि आप सेटिस्फाइड हो, जब आप सेटिस्फाई हो गया इसका मतलब आपको जरूरत नहीं किसी सामने को कहना या करना। और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट के ऊपर आप अपना जैसे पॉलिटिकल आर्ट, तो उसको एक मीडियम में और इसके अंदर एक ग्रामर में लाने के लिए उसके लिए कुछ तो लिमिट होना पड़ता है। वो लिमिटेशन वही कह सकता हूँ, या तो आप मीडियम में ला सकते या परफॉर्मिंग आर्ट के साथ जैसे ना डालनी पड़ेगी बहुत पहले। इसलिए लोग क्या है परफॉर्मेंस आर्ट को ज़्यादा समझेंगे कि उसका कोई आउटलाइन नहीं है या उसको उसी तरह से बिहेवियर में लोग होते नहीं हैं। मान लो कि कोई भी एक जनरेशन की कोई बात कर रहा है
जनरली जो 90% लोग वहाँ देख रहे हैं उन लोगों को इसके बारे में या फिर इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं होगा। बस वो एक बॉडी को देख रहे हैं कि कैसे मूवमेंट हो रहा है या क्या बातें कर रहा है, समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनका अपना जो ब्रेन के अंदर जितनी लाइब्रेरी वोकैबुलरीज है उसके ऊपर जज करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके आई थिंक थैंक यू। Next is Kalyan. नेक्स्ट सोर्स है सबसे पहले तो मैं सूफी और सलमान का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इनके कारण मैं अपना पहला परफॉर्मेंस कर पाया। और मैं यहाँ दिल्ली में सबसे पहले ये शताब्दी का परफॉर्मेंस यहाँ देखा था। तो और मैं यहाँ भी 12 साल से सिर्फ पेंटिंग कर रहा था। तो मेरे को एक इंटरेस्ट आया था इनका परफॉर्मेंस देख के कि इसमें समथिंग कुछ है नहीं, लेकिन कुछ इसमें अपने भाव को प्रकट कर सकते हैं करके। तो काफ़ी समय से मतलब मैं सोचता रहता था कि मैं करूँगा। कभी अपने दोस्तों को बोलता भी था कि यार कुछ ऐसा कुछ मेरे को बेस मिले जहाँ पे मैं उसको कुछ कर पाऊँ करके। तो फिर ये दोनों मुझे सूफी और सलमान मुझे मिले, तो फिर मैं ना तैयार हो गया। और थोड़ा कन्फ्यूज़न तो था ही क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में था। और ओवरऑल फिर मैं ऐसे खोजते फिर मैं अपना परफॉर्मेंस दिया, जिसमें जो नदियों में कूड़ा कचरा कुछ भी पॉलीथीन वगैरह सब ऐसे फेंक देते हैं और धार्मिक चीज़ों को भी पूजा पाठ करके फेंक देते हैं। तो मैं सोचा कि ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं छोटा सा उसको उस सब्जेक्ट को लेके मैं अपना परफॉर्मेंस किया था। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे, क्योंकि और लोगों का परफॉर्मेंस देखने के बाद मेरे को काफ़ी कॉन्फिडेंस आया कि मैं अपने भाव को और अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता हूँ करके। और जस्ट आज का ही मैं बताना चाहूँगा कि आज ही मैं ना कपड़ा धो रहा था और कपड़ा धो रहा था और मैं अपने पैर को वॉशिंग मशीन टाइप यूज़ करता हूँ। मैं जैसे नहाते ना अब हाथ यूज़ करने का मन नहीं करता, तो मैं उसमें पैर से उसको ऐसे करता हूँ, फिर धो लेता हूँ। तो अचानक मेरे को ना ध्यान में आया कि क्यों ना इसको भी एक परफॉर्मेंस के तरीके से किया जा सकता है और बहुत ही यूनिक और बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरे अंदर मतलब ये वाला जो एक माइंड में आने लगा है, तो मैं तो बस यही सोचूंगा कि नेक्स्ट परफॉर्मेंस बहुत जल्दी से हम लोग का कहीं पर हो। और आई थिंक मैं ना अब कॉन्फिडेंट हूँ कि ना छोटे से सब्जेक्ट में मैं ना अपनी क्रिएटिविटी को वहाँ मैं बिल्कुल वहाँ रख पाऊँगा मैं। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि इसको बहुत जल्दी एक इवेंट और किया जाए। और बहुत कुछ सीखने मिला आप लोगों से। तो मैं बाकी तो सबकी बातों में वो इतना पॉइंट था, तो सभी की बातों से कुछ ना कुछ मुझे बहुत सीखने मिला। और आशा है कि आगे सीखने मिलता रहेगा और ये कंटिन्यू जारी रहेगा, जिसके कारण ना हमारे इंडिया में जो परफॉर्मेंस उतना डेवलप नहीं हो पा रहा है, या किसी के अंदर परफॉर्मेंस करने का एक इच्छा भी है, लेकिन उसको एक स्पेस अगर एक हम जैसे 5-8 लोगों के थ्रू भी अगर मिलेगा, तो मेरे ख्याल से प्लेटफॉर्म मिलेगा तो ये काफ़ी ग्रो करेगा। और मेरे ख्याल से इसका परफॉर्मेंस आर्ट काफ़ी ऊपर तक के जाएगा इंडिया में। थैंक यू। सबसे पहले मैं सर का धन्यवाद चाहता हूँ। सबसे पहले मैं सर का धन्यवाद चाहता हूँ। सर के वजह से मैं आज उस टाइम मैं परफॉर्मेंस कर पाया था। तो
और भी जने ऐसे सलमान भाई, तौसीफ भाई और हार्दिक भाई बहुत जने इनके भी ऐसे में और सभी भाई बहुत जने से कर पाया था। तो मैंने जो करा था वो मतलब थोड़ा यूनिक था, पानी के ऊपर था, मतलब पानी का कोई मज़हब नहीं होता। तो ऐसे हिंदू मुस्लिम होती रहती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मतलब पानी का कोई मज़हब नहीं है। तो हाँ, कैसे किया उसको, कैसा लगा, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एंड ऐसे आगे करता रहा। बहुत कंक्लूड करने का आपका मेरा एजुकेशन गो एंड मेरा दूसरी टॉपिक होता है मेनली जेंडर एंड इक्वालिटी, तो इस तरह से मैं वीडियो देता जेंडर के ऊपर। ठीक है, जैसे जो हमारा जब हाथ होता है उसी बनने को तो दो फेस करते थे, तो ये बड़ी आपका तो इनको को लेकर मैंने पसंद किया था। आपको हर टाइम एक समाज एक मुद्दे देता है, बॉडी सोसाइटी के लिए हाइट छोटा है, मोटा है, so many things, so many taboos, norms and gender, उसको भी सप्रेशन है, उसको भी मेरा ये मिलता है। ये कोई मेरा पूरा पूरा पहले था एक लिखा, फिर उसको काटा, फिर उसको चिपकाया, ये सारा However, not going to talk that, but we come to anything point, we are very driving a very nice point. Performance art is time based. एक टाइम के बाद उसका कोई नहीं है। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें और एक चीज़ है, परफॉर्मेंस में टाइम आप कितना दिखाओ वो भी एक बड़ा मुद्दा है। टाइम का वैल्यू, सबसे पहले टाइम का वैल्यू। आप यहाँ पे जाते जाते पूरा दिन नहीं दिखा सकते, समझो तो आपके पास टाइम का इम्पोर्टेंट है। तो आप लंबा पसंद करेंगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी जगह बस उनके के बट इसका माहौल और सब कुछ अलग होता है। स्पेस के ऊपर कौन सी स्पेस पे करें, कौन सी स्पेस पे टाइम यूज करें, तो टाइम यूज हो रहा और कहाँ पे करें और कहाँ पे कर रहे हैं, इसके साथ और की जाएगा कि क्लियर नेगोशिएशन। आप जहाँ भी करोगे आपकी आसपास की एक क्लियर एंड फिजिकल स्पेस, उसके साथ आपका नेगोशिएशन है, आपका अंडरस्टैंडिंग है, उसको कैसे यूज़ करें। चट्टान पे करें, सॉलिड चट्टान जो पानी यूज करें, पानी का स्पेस तो चट्टान का कैसे यूज करता है, क्योंकि जो जहाँ पे अगर हम उसी परफॉर्मेंस को इधर करें तो हमारा पूरा चीज़ चेंज हो जाए, क्योंकि स्पेस बदल गया, फेस बदल गया, पूरा गैमेट बदल गया, वाइट बदल गया, एम्बियंस बदल गया। तो एम्बियंस ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, टाइम, स्पेस, बॉडी, इवन द बॉडी, कैसे बॉडी का रोल करा हो, ठीक है, वट बॉडी कैन बी परफॉर्म, जैसे अभी आपको क्वेश्चन तो वेरी नाइस पॉइंट। तो दीज आर द मोर थिंग्स यू कैन मोर इनलाइटेड टू डू दैट एंड होप वी हैव अ कपल ऑफ इवेंट्स कमिंग अप। मैंने शायद लॉकडाउन के टाइम पे हम लोगों ने मिलकर ऑनलाइन परफॉर्मेंस किए थे, तो 15 डेज़ का 21 डेज़ का परफॉर्मेंस प्रैक्टिस था। बहुत सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट किए थे परफॉर्मेंस, बहुत सारे आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट किए थे, वो ऑनलाइन किए, बहुत सारे वीडियोस मेरे पास कलेक्ट किए। उसके बाद मैंने कंपटीशन में बहुत सारे परफॉर्मेंस आर्टिस्ट पर इवेंट किए। एक कलाखाने के अंदर मैंने एक ब्लॉक ऑफ आर्ट करके 3-4 आर्टिस्ट परफॉर्म किया, उसमें सलीम था, मुरारी भी था, एक और सुचिता करके परफॉर्मेंस आर्ट किए थे, सब डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास है। उसके बाद मेरा एक नेटिव प्लेस है जहाँ पर मैं रिसर्च विजिट करता हूँ, तो वहाँ मैं फेस्टिवल करता हूँ हर ईयर, और उसमें सारे परफॉर्मेंस आर्टिस्ट को ही बुलाता हूँ, कोई पेंटिंग आर्टिस्ट या नहीं बुलाता हूँ, सब एक बार में
मेरे ख्याल से 2019 में लिए थे। और उसमें सारे परफॉर्मेंस आर्टिस्ट बुलाया था और वहाँ पे जो भी फ़ोन जनरेट होता है वो उनके लोकल कम्युनिटी से लोकल होता है। फिर 2022 में हमने दोबारा नवंबर में ही परफॉर्मेंस आर्टिस्ट की थी, उसमें बिल्कुल दीदी वगैरह गए थे और नेल्सी वगैरह गए थे, उनसे भी ले गया था। तो ऐसे बहुत सारे लोग जाते रहते हैं मेरे से। तो इस बार मैंने ट्राई किया है और मेरे घर समुद्र किनारे से बहुत पास है, 2-3 किलोमीटर से। मैंने एक 10 एकड़ की एक स्पेस लिया हुआ है, मेरा अपना ही लैंड था, जो मुझे पता नहीं था, हमारे फैमिली भी पता था, वो मिल गया। उस लैंड पे मैंने बेम्बो फॉरेस्ट डेवलप कर रहा हूँ। बेम्बो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो मैं आई थिंक 2-3 ईयर्स में वो बेम्बो का फॉरेस्ट डेवलप हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो उसके अंदर मैं स्पेशली परफॉर्मिंग आर्ट का परफॉर्मेंस आर्ट का म्यूजियम डेवलप कर रहा हूँ। इसमें वीडियो परफॉर्मेंस भी होगा और डॉक्यूमेंटेशन जो भी किया हुआ है वो सारे वहाँ कलेक्ट होगा। और टाइम टू टाइम फेस्टिवल ओनली परफॉर्मेंस आर्ट के ऊपर होगा, जहाँ पे वहाँ पे आर्टिस्ट बात करेंगे, जैसे मॉर्निंग क्रिकेटर का है। तो इस टाइप की मेरा टारगेट है, ये भी प्लान किया हुआ है करूँगा। और रेसिडेंसी सारी चीज़ें जो भी होगा वो उस पर परफॉर्मेंस आर्ट से होगा। एग्जीबिशन स्टॉल डेफिनेटली म्यूजियम ही है, वो कलेक्ट होकर रहेगा। और 10 एकड़ स्पेस के अंदर मैंने भी स्पेस डिसाइड किया हुआ, मतलब बनाया गया है, जहाँ पर जो जोग्राफी को कैसे परफॉर्मेंस आर्ट यूज़ करे वहाँ भी यूज़ कर रहा था, वो स्पेस भी एक म्यूजियम हो जाए। तो ये एक वॉल स्पेस नहीं है म्यूजियम का, वो एक इतना एरिया के स्पेस के अंदर जो भी आर्टिस्ट जो कुछ काम करेगा वो एरिया उसी के नाम पे होगा। तो वो वहाँ कलेक्ट है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी प्रॉप्स वहाँ पे यूज़ किया है या कुछ भी किया है, वो उसी एरिया उसके लिए इस तरह से मेरा प्लानिंग है। क्योंकि उसके बाद परफॉर्मेंस आर्ट को हम शूट करते हैं या टीवी में देखते हैं या किसी अदर डिवाइस से देखते हैं, तो फिर परफॉर्मेंस का भी कोई असर नहीं है। इसलिए मेरा म्यूज़ियम का यही टारगेट है, यही है या म्यूज़ियम का मेन एम यही है कि हाँ ज़रूरी है कि मैं उसको इन्वाइट करूँ, हाँ एक्ट करेगा। वो मेरा भी उस लेटर के अंदर वो भी लेता है, मैं हर रोज़ लेटर भेजता हूँ तो लिखता हूँ कि आपको यहाँ आना है, परफॉर्मेंस करना है तो आपके चॉइस है, नहीं करना तो कोई बात नहीं। क्योंकि चॉइस भी तो होना चाहिए साथ में, कि आप मेरे कहने से आ रहे हो और परफॉर्मेंस दोगे, मैं तो आपके ऊपर मतलब ऐसे दबाव डाल रहा हूँ, फिर वो परफॉर्मेंस नहीं रहेगा, वो एक्टिंग होगा। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ कि आपको टाइम, मेरा टाइम 2 डेज़ का है या 3 डेज़ का है, आपको लगता है परफॉर्मेंस कर सकते हो तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मुझे लगता है परफॉर्मेंस का ऐसा एक बहुत सारे क्राइटेरिया डेवलप किया है कि परफॉर्मेंस आर्ट के लिए और एक म्यूजियम की जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होते रहे उस एरिया पर, उस जगह पे जैसे कैमरा वगैरह चारों तरफ रहेगा जहाँ पर शूट किया जाएगा, उसका लाइव शूट हो सकता है, लाइव प्रेजेंटेशन हो सकता है। तो साथ में डॉक्यूमेंटेशन के लिए वो पार्ट तो रहेगा ही, थोड़ा सा अलग जगह पर होगा जिसको पढ़ सके, टेक्स्ट हो और आर्टिस्ट के बहुत सारे परफॉर्मेटिव फोटोग्राफ्स होती है, लेकिन वो ऐसे उस जगह पर ऐसे ही रहेगा। कुछ भी ना यूज़ किया हो तो स्पेस उतना ही रहेगा जहाँ पे उसने यूज़ किया उसके नाम पे। ये मेरा एक कहते हैं एक हाँ प्लान है ऑलरेडी। बस वी आर गोइंग टू लूज द लाइट, वी शुड कंक्लूड दिस मीटिंग। Just one point. फर्स्ट ऑफ ऑल जो यंग परफॉर्मेंस आर्टिस्ट है उसको मैं यही सजेस्ट करूँगा, देयर इज मल्टीपल ways to see the performance art. You have to see the performance art to understand. नहीं देखोगे तो समझ ही नहीं आएगा। परफॉर्मेंस का भी एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। वी हैव ए वेरी गुड आर्काइव, SAFC box has a very good archive, video archive. You can go through and struggle, and you can see each country how they perform, how their vocabulary, how their object, they choosing their object. जब तक ये नहीं देखोगे नहीं हो सकता। सेकेंड थिंग और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप लोगों को लगता है परफॉर्मेंस आर्ट हो गया, बट यू नो 2-3 प्लेसेस लाइक मेक्सिको, चाइना, लाइक काइकिंग एंड दोस्तों बाजार, उनका जब भी मैं परफॉर्म करने आता, जो भी परफॉर्म करने आता, क्या डिमांड होता है, वो जो खाना पीना सब कुछ प्रोवाइड करता है, बोलता आफ्टर योर परफॉर्मेंस वॉट एवर यू यूज़ यू कैन डोनेट। अच्छा क्यों भाई, मैंने बोला हम उसको म्यूजियम बनाएंगे और उसको ऑक्शन करेंगे आपके फोटो के साथ। तो मुझे अच्छा लगा आइडिया। तो यू हैव टू ऑल्सो कैरी द लेगेसी। तो आप लोगों को जो जब परफॉर्म करोगे, जो भी कपड़े पहनोगे वो अजीज है, ये कहना चाहिए तो अजीज है, ये नहीं कि ऐसे ही उठा के कर दिया। यू हैव टू बी वेरी
with the importance. कोई नहीं है कि आप जीन्स पहन के करना है कि नहीं करना है, बट वट एवर द कॉस्ट्यूम ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द रोल. All props are very important. Every material. Okay. Okay. Thank you so much to everybody and to join us and see you when you Thank you all of you for your words and suggestions. I think we have, upcoming plan. yes, actually we are planning to do our next event in Delhi. But this time we will do this in a gallery, indoor performance. And as we have discussed the circumstances and possibilities for performance artists and young students, I would say that if you are interested in this practice, then you should join our community to learn and explore this not new but limited to very few artists. You should try this medium of expression. And that's all. Thank you. Just last word. Last event, Sufi was performed very well done because the police was on our head. And I'm looking to Sufi, how cool he was. He was handling very well to the police, dealing the police. Because police was standing on our head. And she was very cool and talking to him. And I'm very scared. Yeah, when Sufi meet the police, then I'm scared because when Sufi say that my name is Sufi, oh, he's a Muslim man. So everybody's expression was changed. But he maintained very well and we cannot feel any kind of trauma. I'm thankful to Sufi. Thank you all of you. Thank you Umesh sir, Pratapguru sir, Salman bhai, Kishore sir, Samad, Hardik, Nitesh, Salim, and there were few performance artists. They were unable to join the meeting, but I hope they will join us in the next event. Thank you all of you.